Hello students, as we have learned the poem Be the Best, today we are going to complete its workshop, okay, or exercise. So here is the page from your textbook, as you can see here. There are 6 questions in this exercise. Let's see it one by one. The first question is, read the words names given below. Put the big sized bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. This is the question. Some words are given here, as you can see in the bracket. 2 circles are here. Now आपको करना ये है कि ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स हैं उनको पहले पढ़ना है और उन अल्फाजों को उनके साइज़ के एतबार से बड़े या छोटे दायरे में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट वर्ड इज मस्की, एज यू कैन सी हियर. ओके, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज मस्की. मस्की क्या है आपको पता होगा. मस्की इज अ फिश but it is very big in size, so we will write it in the big circle. Here it is. Okay, the next one is tree. Can you see here? Tree. तो tree क्या है? दरख्त को बोलते हैं. So of course we have to write it in the bigger box because tree जो होता है वो साइज में बड़ा होता है. So we will write it in big circle. Now the next one is pine. Can you see here? Pine. Again, as you know, pine is bigger in size. Pine का जो दरख्त होता है वो बहुत लंबा होता है, पहाड़ों की ऊंचाई पर पाया जाता है. तो हमको उसको कहाँ लिखना होगा? बिग सर्कल में. ओके, ये तीनों ही साइज में बड़े होते हैं, इसलिए तीनों को हमने कहाँ लिखा है? बिग सर्कल में. Now the next one is lake. As you can see here, lake. Now here there is a slight confusion. थोड़ा सा confusion है यहाँ. अगर हम पोएम को लेकर चलते हैं, पोएम के हिसाब से देखते हैं, तो पोएम में ओशियन और सी का जिक्र किया गया है, समंदर, बहरे आज़म वगैरह का जिक्र हुआ है. उनके मुकाबले में अगर हम लेक का कंपैरिजन करते हैं तो लेक इज स्मॉलर, उसको छोटा जो है वो मानना पड़ेगा हमको. लेकिन पोएम के अलग अगर हम देखते हैं तो लेक दोनों साइज़ के हो सकते हैं. कुछ लेक होते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, कुछ लेक होते हैं जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. तो पोएम के हिसाब से मैं देख रही हूँ तो मुझे सी और ओशन के मुकाबले में लेक काफ़ी छोटा लगता है. दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट इन द स्मॉल सर्कल. ओके, बाद में चाहिए तो लास्ट में हम लेक को बड़े सर्कल में भी लिख देंगे. द नेक्स्ट वन इज बास. एज यू कैन सी हियर, बास आपने पोएम में पढ़ा था. बास इज ऑल्सो अ फिश बट इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो वी विल राइट इट इन द स्मॉल सर्कल. ओके, या. द नेक्स्ट वन इज नाउ बुश. या. Again, bush is also small as compared to tree or pine. So we have to write it in the small circle. Okay. Now the next one is highway. Okay. Of course, it will come in the bigger one as you had learned the poem. Now the next one is scrub. Now scrub, as compared to other things, trees and pines and all, scrub is also considered as smaller one. Okay, so we have to write it in the small circle. Now the next one is rill. Rill is also small in size, so we have to write it in the small circle. The next is sun. Of course, everybody knows sun is very big in size, so it will come in the bigger one. Next is star. In the poem, star is compared to the sun and it is
said to be small, so we have to write it in the smaller one. And the last one is trail. Trail is of course smaller than the highway, so we have to write it in the small circle. तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो है एक लेक मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको दोबारा यहाँ लिखना चाहूँगी बिग वाले में, क्योंकि ये दोनों में भी आने के इसके चांसेस है। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Here is the second question. Form groups of 4. Read each stanza in the poem turn by turn. ये जो है 4 का ग्रुप बनाना है और पोएम पढ़ना है, तो खैर ये तो अभी हम नहीं कर सकते, so we will proceed to the next one. Third one, find and write the pairs of rhyming words from the poem. You have to find the rhyming words. Now what is rhyming words? मेरे ख्याल से आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं। राइमिंग वर्ड जो है वो उर्दू में अगर मैं आपको बताऊँ काफ़िए को बोलते हैं, यानी हम वज़न अल्फाज जिनकी वजह से पोइट्री में एक रिदम आता है, खूबसूरती आती है राइमिंग वर्ड्स की वजह से। इसका जो साउंड होता है वो एंड साउंड जो होता है वो सिमिलर होता है, सेम साउंड करता है। वर्ड डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, लेकिन वर्ड जहाँ ख़त्म होता है जो एंडिंग साउंड होता है वो हमको बिल्कुल एक जैसा सुनाई देता है। अब आप इसको ढूंढोगे कैसे, तो उसका तरीका ये है कि वर्ड जो है पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में मिलते हैं, लेते होंगे। ये एक लाइन में एक वर्ड होगा, दूसरी लाइन में दूसरा वर्ड होगा। तो ये लाइन, इसको ढूंढने का आसान तरीका ये है कि ये लाइन के एंड में होता है। एज यू कैन सी हियर, एंड में होता है। फर्स्ट लाइन देखिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट वर्ड क्या है फर्स्ट लाइन का, हिल। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हमेशा एंड में होते हैं और ये साउंड जो होता है इसका लास्ट एंड साउंड हमको सेम ढूंढना पड़ेगा। अब फर्स्ट लाइन में हिल मिल गया है, अब सेकेंड लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी। तो हिल और बी ये कहीं से भी सेम साउंड नहीं लगता है हमको, मैंने कहा था एंड साउंड सेम होना चाहिए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लाइन, रिल। लास्ट वर्ड है रिल, हिल रिल। आप यहाँ समझ सकते हो कि इसका एंड साउंड सेम आ रहा है। तो फर्स्ट आप हमको पैर मिल गया है राइमिंग वर्ड का, हिल और रिल। राइमिंग वर्ड जो है वो एक के बाद एक लाइन में भी आ सकते हैं, ऑल्टरनेट लाइन में भी आ सकते हैं, एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में। कभी कभी ये होता है कि फर्स्ट लाइन में होता है और बंद के लास्ट लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको राइमिंग देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर इस नज़्म में फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, ये दो लाइन में आपको राइमिंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये दो लाइन भी आपस में राइम कर रही है। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड लाइन बी और इसका आपको मिलेगा फोर्थ लाइन में ट्री। बी ट्री सुनाई दे रहा है, बिल्कुल एंड साउंड सेम है। तो बी और ट्री ये दूसरा राइमिंग पेयर मिल गया हमको, जोड़ी मिल गई है, यानी सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन ये भी आपस में एक दूसरे से राइम करती है। तो फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन आर राइमिंग, सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन आर राइमिंग। सो द फर्स्ट आंसर विल बी हिल रिल बी ट्री। नाउ द नेक्स्ट वन, इन द सेकेंड स्टेंजा द फर्स्ट वर्ड इज ग्रास। अब आप देखिए सेकेंड लाइन में क्या है, मेक, दोनों भी राइम नहीं कर रहे हैं। थर्ड लाइन में क्या है, बास, ग्रास बास, सेम साउंड कर रहा है एंड का, तो नेक्स्ट जोड़ी बनेगी ग्रास बास की। यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही है। नाउ सेकेंड लाइन है यहाँ पर मेक। ठीक है, अब फोर्थ लाइन देखो, लेक, मेक लेक, यहाँ भी एंड साउंड सेम है। इसका मतलब हमारा दूसरा जो राइमिंग पेयर हमको यहाँ मिला है ग्रास बास मेक लेक। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ सिर्फ डी तक के लिए जगह दी हुई है, लेकिन आपको बाकी के दो स्टेंजाज में से भी आंसर्स ढूंढने हैं और खुद से उनको आगे, इसके आगे ई एफ जी एच करके इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो ऐसे टोटल आपको और 4 ढूंढने हैं अगले 2 बंद में से। मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट बंद की लाइन है, इसमें फर्स्ट है क्रू और नेक्स्ट वन है डू। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा नेक्स्ट लाइन हियर near. Okay, then the next stanza trail fail, second line star r। तो इस तरह से ये चारों आपको खुद से लिखने पड़ेंगे आगे। Now
We will proceed to the next question, that is fourth question. I will read the fourth question for you. Complete the following with appropriate words, phrases from the poem. बहुत आसान है ये, पोएम में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखकर कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. पहला वाला आपके लिए करके यहाँ पर लिखकर दे दिया है. इफ़ यू कांट बी अ पाइन बी अ स्क्रब. अगर आप पाइन नहीं बन सकते हो स्क्रब बन जाओ. इफ़ यू कांट बी अ ट्री. अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो तो यहाँ पर आपको लिख कर दिया है, अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो तो आपको क्या बनना है, यहाँ पर आएगा बी अ बुश. आप क्या बन सकते हो, बुश बन सकते हो. नेक्स्ट वन, डैश बी अ बास. ठीक है, डैश बी अ बास. आप क्या नहीं बन सकते हो तो आपको बास बनना पड़ेगा. यहाँ पर आएगा इफ़ यू कांट बी अ मस्की बी अ बास. द फोर्थ वन इज इफ़ यू कांट बी अ कैप्टन. अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते हो तो यहाँ पर दिया है, कैप्टन नहीं बन सकते तो आपको क्या बनने पड़ेगा, बी अ क्रू. ओके. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज डैश बी अ ट्रेल. तो आप ट्रेल कब बनोगे, जब आप क्या नहीं बन सकते हो. आंसर विल बी इफ यू कांट बी अ हाईवे. द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, इफ यू कांट बी द सन. अगर आप सूरज नहीं बन सकते हो तो आप क्या बनोगे, बी अ स्टार. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. सही गलत लिखना है. ऑल मस्ट बी कैप्टन ऑफ द टीम. सबको टीम का कैप्टन बनना चाहिए. ऑफ कोर्स द आंसर विल बी फॉल्स. अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर. ग्रास की वजह से हाईवे जो है वो खूबसूरत नज़र आता है, लोगों को खुशी देता है. ऑफ कोर्स ट्रू. वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजीशन. हमारी हार जीत का फैसला जो है हमारी पोजीशन करती है, साइज करती है. तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स. अ स्क्रब इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल. स्क्रब जो है वो वैली में पाया जाता है, हिल पर नहीं. तो फॉल्स आएगा. इफ़ योर वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट. आपका काम अगर इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है तो आप उसको करो ही नहीं. इट्स रॉन्ग, फॉल्स. नंबर 6, वॉट एवर जॉब यू हैव डू योर बेस्ट. आप कोई भी काम करो वो कैसा होना चाहिए, आपका बेस्ट होना चाहिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो. आपको पोएम अप्रिसिएशन यहाँ पर लिखना है. मैं आपको बता दूँ, पोएम अप्रिसिएशन का मतलब होता है नज़्म की कद्र शनासी करना. मतलब नज़्म के बारे में आपको उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखनी होंगी. और वो कैसे लिखनी है, तो नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपको इनकी मदद से वो लिखना है. ओके. द फर्स्ट पॉइंट इज द टाइटल ऑफ द पोएम इज. पोएम का टाइटल क्या है, ऑफ कोर्स ये रहा टाइटल. उन्वान क्या है पोएम का, बी द बेस्ट. लिख दिया यहाँ पर. नंबर 2, द पोएम इज रिटन बाय. किसने लिखा है पोएम, तो ये हमेशा देखेंगे आप लोग पोएम के नीचे नाम होता है पोएट का. तो सेकेंड का आंसर आएगा डगलस मैलॉक. ओके. नाउ द थर्ड वन, द पोएम हैज़ डैश स्टेंजा. पोएम में कितने स्टेंजा है, स्टेंजा यानी बंद. कभी वो 4 लाइन के होते हैं, कभी 6 लाइन के होते हैं. बंद कितनी भी लाइन के हो सकते हैं. आप यहाँ पर आराम से काउंट कर सकते हैं. ये पहला बंद है, ये दूसरा बंद है, ये तीसरा है और ये चौथा. तो यहाँ पर आपको 4 बंद मिलेंगे. ईच स्टेंजा हैज़ डैश लाइन्स. हर स्टेंजा में कितनी लाइन आप काउंट कर सकते हैं, 4 लाइन्स है इसमें. ठीक है, हर स्टेंजा में. द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, द लाइन दैट राइम इन ईच स्टेंजा आर. हर स्टेंजा में कौन सी लाइनें राइम कर रही हैं, तो मैंने अभी आपको राइमिंग वर्ड के वक्त समझाया था कि पहली लाइन में राइमिंग वर्ड है और थर्ड लाइन में राइमिंग है. तो फर्स्ट एंड थर्ड. उसके बाद सेकेंड लाइन में जो एक वर्ड है लास्ट वर्ड, वो राइम कर रहा है फोर्थ लाइन से. दैट मीन्स सेकेंड और फोर्थ लाइन भी आपस में राइम कर रही है. तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ये आंसर आएगा. ये लाइन राइम कर रही है आपस में. नंबर 5, द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग्स विथ. बड़ी चीज़ों को किससे कंपेयर कर रहा है, ऑफकोर्स छोटी चीज़ों से, तो स्मॉल थिंग्स. सिक्स्थ वन, डैश इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम. ऐसी कौन सी लाइन है जो इस पोएम में बार बार रिपीट हुई है. रिपीट होने यानी दोहराना,
बार बार कौन सी लाइन दोहराई गई है, ठीक है। तो वो लाइन यहाँ पर आप पोएम देखोगे तो आपको समझ में आएगी। इफ़ यू कांट बी, अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो तो बुश बनो, अगर आप पाइन नहीं बन सकते हो तो स्क्रब बनो, अगर आप मस्की नहीं बन सकते हो तो बाज बनो, सन नहीं बन सकते हो तो स्टार बनो। ये वाला जो एक लाइन है इफ़ यू कांट बी, ये लाइन बार बार उसमें रिपीट हुई है, दोहराई गई है। नाउ द 7th वन, द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, मैं हमेशा ये लाइन याद रखूंगी या याद रखना चाहूंगी, या आपको जो लाइन पसंद आई है पूरी पोएम में, तो यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूंगी, यहाँ ब्लैंक ही रहेगा। ये हर बच्ची अपने हिसाब से, आपको इसमें क्या अच्छा लगा है, कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको अच्छी लगी है, इसमें से कोई भी लाइन हो सकती है, वो बी द बेस्ट हो सकती है, या फिर आखिरी वाली लाइन हो सकती है, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये मैंने ब्लैंक ही छोड़ा है, ये आप अपनी मर्जी से इसमें लिखेंगे, ठीक है। सो हियर वर्कशॉप इज फिनिश्ड। नाउ you have to write it down in your textbook and notebook. So today's session is finished. Thank you.